Good morning, dear students. Welcome to your maths class. Students, in previous class we have completed the exercise 4.3 and today we are going to solve the examples from the exercise 4.4. So in this exercise 4.4 we are going to solve the two kinds of questions. In first part we are going to solve the questions in which we have to perform the multiplication of 3-digit number बाय 1-digit नंबर. ओके, यहाँ पे हमने जो दो पार्ट्स है उसमें से पहले पार्ट में क्या करेंगे, 3-digit नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने एक्सरसाइज 4.3 में भी सॉल्व करे थे ऐसे वाले क्वेश्चंस. और सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में वी आर गोइंग टू लर्न दी कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन. ओके, सेकेंड पार्ट में हम कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं. सो पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर हम सेकेंड पार्ट सीखेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द टुडेज क्लास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2, we have to multiply 447 by 3. So we will start multiplying from the ones place digit first. Okay, so in the ones place we have 7 over here. So 7 multiplied by 3. 7 3s are 21. Okay, so in 21 we have 1 at ones place and 2 at tens place. So we have to write the ones place digit in the answer. So answer में क्या आएगा यहाँ पे 1, and the tens place digit which is 2 will be taken as a carry and it will move to the next place, that is tens place. So tens place के ऊपर 2 लिखेंगे as a carry, and because 2 is a carry we will circle it. Now we will multiply the tens place digit. Okay, so remember kids, we have to multiply the tens place digit, not the carry. हमने डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, कैरी को मल्टीप्लाई नहीं करना है. सो हियर एट टेंस प्लेस वी हैव डिजिट 4 ओवर हियर एंड 2 इज द कैरी. दैट्स व्हाई वी विल मल्टीप्लाई 4 बाय 3. सो 4 3s are 12. So 12 plus this carry it will become 14, है ना. So 14, again mark the places tens and ones. So in 14 we have 4 at ones place. So 4 will be taken as an answer and it will be written under the tens place column in the answer, and 1 will be taken as a carry. So it will move to the next place, that is 100 place, and we will write 1 over here as a carry, and we will circle 1 so that we should know that it is a carry, not a digit. So now in hundreds place we have a digit 4 over here. 100 place में क्या digit है यहाँ पे 4. So 4 multiplied by 3. 4 3s are 12. 12 plus this carry. हमेशा कैरी ऐड करेंगे. जो भी प्रोडक्ट आएगा हमारा दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा, आंसर आएगा, उसमें हमें जो कैरी है वो ऐड करना पड़ेगा. 4 3s are 12 plus 1, it is equal to 13. So after this 100 place digit we don't have any place over here, any further digit over here. That's why we don't have to take any carry over here. We will write the number as a answer. Okay, so 13 will be written in the answer as it is. So the final product is 1341. Now next example, question number 5 from the exercise 4.4. We have to multiply 324 by 7. Okay, so 4 multiplied by 7. 4 7s are 28. So in 28, 8 will be written as an answer under the ones place column, and 2 will be taken as a carry to the next place, that is tens place. So tens place में carry क्या आएगा 2, और 2 carry है इसलिए उसको सर्कल करना है. और हमेशा याद रखना है हमने मल्टीप्लाई
सिर्फ डिजिट को करना है, कैरी को नहीं करना है. ओके, सो नाउ at tens place we have digit 2 over here. So 2 multiplied by 7. 2 7s are 14 है ना. 2 7s are 14. 14 plus the carry. 14 plus 2 is equal to 16. तो हमेशा जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें कैरी ऐड करना याद रखना है. कैरी ऐड करना भूलना नहीं है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. सो हियर द प्रोडक्ट वाज 14, सो वी हैव टू ऐड दिस कैरी 2 over here, then the answer is 16. आंसर आएगा 16. Now 16 के वंस प्लेस में है 6, तो 6 will be written under the tens place column in the answer and 1 will be taken as a carry which will move to the next place which is 100 place. तो 100 place में क्या कैरी आएगा? 1. Now 100 place की डिजिट है 3, so 3 multiplied by 7. 3 7s are 21. 21 is the product plus carry. ओके, तो 21 में हमें ये कैरी ऐड करना पड़ेगा. तो 3 7s are 21 plus 1 is equal to 22. So 22 will be the answer. Here after 3 there is no digit left. 3 के बाद कोई डिजिट है क्या आगे? नहीं, इसीलिए हम कोई कैरी यहाँ पे लेंगे नहीं. डायरेक्टली जो आंसर आया है उसको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे. So 22 will be written like this in the answer. So final product will be 2268. Okay. Now next question, question number 8. Here we have to multiply 263 by 5. So ones place से शुरू करेंगे मल्टीप्लाई करना. 3 5s are 15. 15 के वंस प्लेस में क्या है? 5. तो 5 लिखो वंस प्लेस के अंदर आंसर में, और 1 को हम लेंगे कैरी, तो 1 चला गया कैरी. नाउ नेक्स्ट प्लेस क्या है? टेंस प्लेस. टेंस प्लेस में है 6. 6 multiplied by 5. 6 5s are 30. So 30 plus this carry. What will be the answer? 31. अगेन 31 में हमें कैरी लेना पड़ेगा, तो ये जो 1 है ये आंसर में आएगा. सो यू हैव टू राइट 1 अंडर द टेंस प्लेस कॉलम, और जो ये 3 है वो चला जाएगा नेक्स्ट प्लेस में, यानी 100 प्लेस में. सो 3 इज टेकन एज अ कैरी एट 100 प्लेस. नाउ 100 प्लेस के डिजिट क्या है? 2. तो 2 को मल्टीप्लाई करो 5 से. 2 5s are 10. 2 5s are 10. 10 इज द प्रोडक्ट, तो हमें प्रोडक्ट में ये जो कैरी है यहाँ पे वो ऐड करना पड़ेगा. सो 10 plus 3 विल बी इक्वल टू 13. तो 13 एज इट इज आंसर में लिखेंगे, क्योंकि 2 के बाद कोई और डिजिट बचा नहीं जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ पे कैरी नहीं आएगा. 13 एज इट इज हम आंसर में लिखेंगे. सो प्रोडक्ट विल बी 1315. ओके, so we have finished with the first part. Now we will move to the next part, that is continued multiplication. Okay, तो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया. अभी कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे. सो फ्रॉम द एक्सरसाइज 4.4 आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 11 and 12. Okay, and the question number 10 you have to solve in your homework. Okay, मैं 11 12 सॉल्व करके दे रही हूँ, तो आपको 10 होमवर्क में सॉल्व करना पड़ेगा. और ये जो फर्स्ट पार्ट था उसमें का भी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 5 7 और 8 सॉल्व करके दिया है. बाकी बच्चे क्वेश्चंस 1 3 4 6 and 9 you have to solve on your own in your homework. So you have to solve all the unsolved questions in your homework on your own. Now let's begin with the question number 11. Question number 11, 123 multiplied by 2 multiplied by 4. तो इसको कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है. पहले 123 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज वाई दिस multiplication method is called as continued multiplication. So here we have one multiplicand and 2 multipliers.
सो व्हाट वी विल डू, पहले हम जो मल्टीप्लिकेंड है उसको पहले वाले मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम सेकेंड वाले मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसीलिए इसको हम कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं। वी विल मल्टीप्लाई 123 by 2. Okay, so write over here in the top, multiply 123 by 2. Then we will use column method to do multiplication. So in column method we have to write our multiplicand in the top. तो top में हम लिखेंगे, ऊपर सबसे ऊपर multiplicand लिखेंगे 123 multiplied by 2. And let's perform the multiplication. Let's perform the multiplication. 2 3s are 6. Next digit is 2. 2 multiplied by 2. 2 2s are 4. Next digit is 1. 1 multiplied by 2. 1 2s are 2. So the product over here is 246. What is the product? 246. अभी हमें we will not stop over here. Okay, we have not finished yet. ये जो प्रोडक्ट है इसको अब हमें ये जो 4 है यहाँ पे दूसरा मल्टीप्लायर उससे मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप 2 में क्या लिखेंगे हम? स्टेप 2 में लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई 246 बाय 4. ओके, सो स्टेप 1 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब नाउ स्टेप 2 में वी विल मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट विच वी गॉट इन द स्टेप 1. वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट प्रोडक्ट बाय द 4. सो कॉलम मेथड यूज करो। 246 इज आवर मल्टीप्लिकेंड नाउ। ये जो प्रोडक्ट आया था फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन में वो अब क्या बनेगा? हमारा मल्टीप्लिकेंड। तो उसको हम ऊपर लिखेंगे 246, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन देंगे। अब हमारा मल्टीप्लायर क्या है यहाँ पे? 4. सो 4 को लिखो मल्टीप्लायर के जगह और मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दो। सो वंस प्लेस में है 6. 6 मल्टीप्लाइड बाय 4. 6 4s are 24. 24 है। आपको अगर ओरली नहीं पता चल रहा है वंस प्लेस का डिजिट क्या है, टेंस प्लेस का डिजिट क्या, तो आप ऐसे मेरे जैसे रफ में लिख के कर सकते हो। ओके, या आपको पता है इफ़ यू आर श्योर कि वंस प्लेस की डिजिट क्या है और आंसर में कौन सी डिजिट जाएगी और कैरी में कौन सी डिजिट जाएगी तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर यू टू अंडरस्टैंड आई एम राइटिंग दीज ऑल स्टेप्स इन दी रफ. It's not necessary for you to write all the rough work like me. Okay, so 24 के ones place में क्या है? 4. So 4 will be written under the ones place column in the answer and 2 will be taken as a carry to the next place. Okay, now we will multiply tens place digit which is 4 by 4. 4 multiplied by 4. 4 4s are 16. तो 16 जो प्रोडक्ट आया है उसमें हमें ये कैरी ऐड करना है। तो 16 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 18. तो 18 में भी फिर से हमें कैरी लेना पड़ेगा। तो वंस प्लेस में 8 आया है इसलिए उसको आंसर में लिखेंगे। 8 को क्या लिखेंगे? आंसर में। तो टेंस प्लेस के आंसर में क्या आएगा? 8. और ये जो टेंस प्लेस का 1 है 18 के टेंस प्लेस में क्या है? 1. ये जो 1 है वो कैरी चला जाएगा नेक्स्ट प्लेस 100 प्लेस में। So 100 प्लेस में we have a carry 1 over here. Now 100 प्लेस की डिजिट क्या दिखाई दे रही है? 2. 2 multiplied by 4. 2 4s are 8. 8 plus this carry. 8 plus 1 is 9. So answer में we will write 9. The product will be 984. So the final answer of the multiplication will be 123 multiplied by 2 multiplied by 4 is equal to 984. क्या आया हमारा आंसर? 984. तो फाइनल ऐसे आंसर लिखना है अपने, ठीक है। Now the last question from today's class, question number 12, in which we have to multiply 248 multiplied by 5 multiplied by 3. 248 multiplied by 5 multiplied by 3. तो यहाँ पे हमें फिर से 2 मल्टीप्लायर है 5 और 3। तो ये भी कौन सा मल्टीप्लिकेशन हुआ? कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन। ओके,
तो पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, वी विल मल्टीप्लाई 248 by 5. मल्टीप्लाई 248 by 5. तो 248 यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड है, 5 मल्टीप्लायर है, इसलिए हम कॉलम मेथड में 248 को ऊपर लिखेंगे और 5 को मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद लिखेंगे. सो 248 मल्टीप्लाइड बाय 5. नाउ लेट्स परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन. 8 मल्टीप्लाइड बाय 5. 8 5s are 40. 40 टेंस और वंस प्लेसेस के डिजिट मार्क कर लो. वंस प्लेस में है 0, इसीलिए आंसर में क्या लिखेंगे 0. टेंस प्लेस में क्या है 4, इसलिए ये जो 4 है वो क्या चला जाएगा, कैरी. कहाँ पे, नेक्स्ट प्लेस. कौन सी प्लेस है नेक्स्ट प्लेस, टेंस प्लेस. सो टेंस प्लेस में 4 आएगा एज अ कैरी. नाउ टेंस प्लेस की डिजिट क्या है यहाँ पे, 8 के बाद क्या है 4. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 by 5. 4 5s are 20. 20 is our product, but we have to add this carry with our product. So 20 plus 4 is 24. आंसर क्या आया 24. तो 24 के वंस में क्या है 4, तो 4 पहले आंसर में लिखो. टेंस प्लेस के नीचे आंसर में आएगा 4 और 2 क्या है टेंस प्लेस का डिजिट. 24 के टेंस प्लेस में क्या है 2, तो ये जो 2 है टेंस प्लेस का डिजिट वो चला जाएगा नेक्स्ट प्लेस में एज अ कैरी. सो 2 will be the carry. Now यहाँ पे 100 प्लेस की डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 100 प्लेस में है 2. 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. 2 5s are 10. 10 plus the carry is equal to 12. 12 as it is आंसर में लिखेंगे. So the final product is 1240. So we have got the product which is equal to 1240. Now we have to multiply this product by 3. ये जो प्रोडक्ट आया है 1240, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो सेकेंड मल्टीप्लायर है यहाँ पे 3 से. तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई 1240 by 3. ओके, हमें 1240 को मल्टीप्लाई करना है 3 से. सो 1240 आएगा मल्टीप्लिकेंड की जगह ऊपर, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन और मल्टीप्लायर क्या है यहाँ पे 3. सो 3 से हम करेंगे मल्टीप्लाई. नाउ लेट्स बिगिन विद द मल्टीप्लिकेशन. 0 मल्टीप्लाइड बाय 3, आंसर विल बी 0. सो वंस प्लेस के नीचे आंसर में 0 लिखेंगे. 4 मल्टीप्लाइड बाय 3. 4 3s are 12. So 2 will be written under the tens place column in the answer and 1 will be taken as a carry. 12 के tens place में क्या है 1, इसीलिए 1 आएगा carry to the hundreds place. 100 place में 2 है, तो 2 multiplied by 3. 2 3s are 6. 6 is the product plus this carry. तो 6 plus 1 is 7. तो 100 प्लेस के आंसर में नीचे लिखेंगे 7. नेक्स्ट प्लेस कौन सी है 1000 प्लेस. 1000 प्लेस की डिजिट क्या है यहाँ पे 1. 1 मल्टीप्लाइड बाय 3. 1 3s are 3. सो आंसर में हम लिखेंगे डायरेक्टली 3. सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी 3720. सो कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो आया 3720. तो यहाँ पे आंसर में लिखना है 248 multiplied by 5 multiplied by 3 is equal to 3720. So this is our final product. Okay, so in this way we have learned how to do the continued multiplication. And if you have not understood any question from today's exercise, you can ask your doubts anytime. Till then, thank you. Have a nice day.